Okay. Good morning, everyone. So today we are going to do page number 26 of workbook, chapter number 4, long and short. So take out page number 26. On page number 25, we had studied about measurement of length of the object using our body parts. जो पेज नंबर 25 में हमने जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, कैलकुलेटर, शू बॉक्स, देन कॉम एंड फुट मैट. ओके, कैलकुलेटर, शू बॉक्स, कॉम एंड फुट मैट, ये सारे ऑब्जेक्ट हमने मेज़र किए थे और वो मेज़र करने के लिए हमने हमारे बॉडी पार्ट्स का यूज़ किया था. ओके, we had used our body part like fingers, hand span, foot span. But on page number 26, we are not going to use our body parts. We are going to use scale. We are going to use scale. So everybody look here. Look here. You can see the blackboard. All right. Now on the blackboard you can see leaf, pen, and plant. Okay, I have not taken number 2 and number 4, 5. I will explain you first, third and sixth example, and rest you will do yourself. Now the heading is using a scale measure the length of the following in centimeter. So everybody take out the scale. This is the scale. You all know, when you see the scale properly, you can see the numbers written on the scale 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you have small scale, you can see till 15. Okay, and you can also see cm is written here, centimeter is written. cm stand for centimeter. C means centi, m for meter, centimeter. So right now I have scale, in that 1 to 15 number is given. Alright, so you have to measure this leaf, pen, plant using the scale. You will not use your body parts. On page number 25, we had used our body parts to measure the object. But on page number 26, we are not going to use our body parts like fingers, foot span, hand span. We are going to use scale. Okay. Now how to measure? How to measure the object? So what you have to do? Let me tell you in workbook first. You can see the workbook. Okay, suppose here first is given leaf. Okay, leaf is given. Now you can see small line also, horizontal line you can see. All right. Okay, what to do now? How to measure this leaf? So you have to take the scale. अपने हाथ में स्केल लेना है, and on your scale number starts from 0. You can see it. So you have to place the 0 on the one end of the leaf. You can see this is the leaf end, this is the another
end of the leaf. You can see two end here. Okay, so you have to place the scale starting from 0 on the one end here. Okay, you have to place the scale starting from 0. जहां से 0 शुरू होता है वहां से आपको स्केल रखना है. जैसे कि देखो मैं रख रहा हूं यहां पर. देन उसको एडजस्ट करना अच्छी तरह. और जो दूसरा जो एंड है वो खत्म हो रहा है 3 पर. आप ध्यान से देखो 3 पे खत्म हो रहा है. ओके, दैट्स व्हाई आई रोट हियर 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर. Is that clear? Okay. Moving to the third example. Pen is given to you. Pen. Okay. I will not do the second one. Second one you have to do yourself. Okay. I am explaining you third one. Second one you will do yourself. Okay. Just okay, this is the pen. Take the scale. Take the scale. You can see two end. 1 and 2 end is there. You have to place the 0 on one end of the pen, as I am showing here. Okay, and another end. Then you have to adjust. Another end you can see it stop on 5. 5 पे खत्म हो रहा है. 0 से शुरू हो रहा है, 5 पे खत्म हो रहा है. 0 से शुरू हुआ था और 5 पे खत्म हुआ है. मीन्स टोटल 5 सेंटीमीटर. क्लियर? ओके. देन फोर्थ वन यू हैव टू डू योरसेल्फ होमवर्क. फिफ्थ वन बटरफ्लाई इज देयर. वो भी अपने आप करना है. Take out sixth, page number 27, sixth one. You can see plan. ऐसा आपको प्लान दिख रहा होगा. अब देखो यहाँ पे तुम कंफ्यूज मत होना कि सर प्लान को हमको इस तरह मेजर करना है कि ऐसे मेजर करना है. आपको देखो 2 लाइन दी हुई है आपको ऊपर, यहाँ पर और एक नीचे लाइन दी हुई. मतलब आपको मेजर टॉप टू बॉटम करना है. टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक, जैसे मैं दिखा रहा हूं. ओके, दिस इज योर पेज नंबर 27, सिक्स्थ वन. ओके, यू कैन सी हियर one line on the top, another line on the bottom of the plant. Adjust the scale. One end you have to put on 0. 0 से स्टार्ट होता है, वहाँ पे रखना है. सेकेंड एंड आप देख सकते हो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है. 7 पे ख़त्म हो रहा है. ओके, एडजस्ट करना है स्केल को अच्छी तरह. 7. सो द लेंथ of this plant is 7 centimeter. 7 centimeter. Is that clear? Okay. So I am giving you 5 minutes. You have to complete example number 2, 4, 5 and 7. Start doing. You have 5 minutes to complete this. जो स्पून है वो आपको उसको मेजर करना है, बॉटल को मेजर करना है, बटरफ्लाई को मेजर करना है और बॉय, ये सारे को आपको मेजर करके अभी लिखना है. Any question is there? You can ask me. समझ में आ गया सबको? Yes.
क्या? बॉटल का है ना, सेंटीमीटर 9 और 10 के बीच में आता है। ओके, चलो वो भी मैं दिखा देता हूँ अभी। 9 और 10 के बीच में आता है ना बेटा, तो 9.5 है। 9.5 लिखना आपको, क्योंकि 9 के बाद कितने पॉइंट है देखो आप, देखो यहाँ पे देखो, मैं दिखा रहा हूँ। सपोज आपकी बॉटल 9.5 पे, तो देखो 9, ये रहा 9, और 9 के बाद देखो एक पॉइंट दिया हुआ है, तो 9.1 हुआ वो, फिर 9.2, फिर 9.3, 9.4 और 9 यदि आपकी यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो 9.5 लिखना आपको। यहाँ पे ख़त्म हो रहा ना, तो 9.5 क्या लिखना है, 9.5। समझ में आ रहा है? नाइन और 10 के बीच में देखो यहाँ पे जो लाइन दी है वो 9.5 है, ये वाली। कैसे हुई? यहाँ पे 9 है, फिर देखो बीच में आपको टोटल 10 स्मॉल स्मॉल लाइंस दी हुई है, इसलिए 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.5 हो गए बॉटल। तो बॉटल का मेजरमेंट लिखो 9.5। यस, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। मुझे क्या? डॉट कर देना बेटा, डॉट देखो यहाँ पे देखो, 9.5 सेंटीमीटर, 9.5, मेरा हो गया। 9.5 बॉटल सर में हो लिखो गया 9.5। सर मेरा भी हो गया। चलो बटरफ्लाई का कितना सर हो रहा मेरा है? भी हो गया। बटरफ्लाई का, सर मेरा भी हो गया। बटरफ्लाई का कितना हुआ सर बताओ मुझे। मेरा हो गया। बटरफ्लाई का कितना हुआ? 4। 4, यस, बटरफ्लाई का 4 है। और वो बॉय? 11 बॉय का 11.5। वेरी नाइस, 11.5। स्पून 4 सेंटीमीटर, बॉटल 9.5, ओके, लिख दो फटाफट। बटरफ्लाई 4 सेंटीमीटर, बटरफ्लाई 4 सेंटीमीटर, प्लांट 7 सेंटीमीटर,
Okay. Now you take out page number 28. Page number 28 take out. ओके, पेज नंबर 28 पे क्या दिया है देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात. बिलो आर द गिवन 4 रूट्स फ्रॉम रोहन स्कूल टू होम. हेल्प रोहन टू पिक आउट द स्मॉलेस्ट रूट फ्रॉम हिज होम टू स्कूल. यहाँ पे आपको जो बच्चा दिख रहा है उसका नाम है रोहन. ये रोहन है. ओके, ये रोहन है और ये रोहन की स्कूल है. ये रोहन की यहाँ पे स्कूल है. अब जब रोहन स्कूल से घर और घर से स्कूल जब जाता है ना, तो उसके पास 4 अलग अलग रूट्स है, 4 अलग अलग रास्ते हैं. ओके, रूट नंबर ए, दिस इज रूट नंबर बी, दिस इज रूट नंबर सी एंड दिस इज रूट नंबर डी. देखो यहाँ पे रूट नंबर ए ये लिखा हुआ है, ये रूट नंबर ए है, ये इसका रूट नंबर ए है. मतलब उसको घर से स्कूल आना है और स्कूल से घर जाना है, तो ये रूट से भी जा सकता है. जो दूसरा रूट है, ओके, जो दूसरा रूट है वो ये रहा. देखो यहाँ से वो घर से स्कूल है, स्कूल से घर आ सकता है. और जो थर्ड रूट है वो ये वाला, रूट नंबर सी, एंड रूट नंबर डी इज दिस वन. तो रोहन के पास यहाँ पे 4 स्कूल से घर, घर से स्कूल आने के 4 इसके पास रास्ते अलग अलग है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, उस रूट का नाम दिया हुआ है, रूट नंबर ए, बी, सी, डी. ओके. अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि इसको होम से स्कूल आना है तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट रूट फ्रॉम हिज होम टू हिज स्कूल. तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं. देखो रूट नंबर ए, रूट नंबर ए जो दिया हुआ है वहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 4 + 1. यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 4 + 4 + 1 + 3 + 2 + 2 = 12. मतलब 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 सेंटीमीटर. तो ये क्या है कि देखो ये रूट नंबर ए लिखा हुआ पर, रूट नंबर ए. तो रूट नंबर ए कितना लॉन्ग है, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 सेंटीमीटर, है ना. तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है. देन इट इज गिवन 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है. देन 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है. देन 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 लिखा है. अगेन 2 सेंटीमीटर जब और चलता है तो वो स्कूल पहुँच जाता है. तो टोटल सबको करेंगे, सबको जोड़ेंगे, वी विल गेट 12 सेंटीमीटर. हाउ मेनी? 12 सेंटीमीटर. ऑल राइट. तो इसी तरह से आपको रूट नंबर जो बी है वो भी ऐसे ही करना है. तो देखो आप रूट नंबर बी में मैंने क्या लिखा है, ये रहा रूट नंबर बी, ये रूट नंबर बी है. तो जितने भी नंबर्स यहाँ पे आते हैं रूट नंबर बी में, यू हैव टू ऐड ऑल दिस नंबर्स. सो यू कैन सी 2, ओके, यू कैन सी 2. देन अगेन यू कैन सी 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है. अगेन 2 इज देयर, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है. अगेन 2 इज देयर, तो यहाँ पे 2 लिखा है. देन 3 इज देयर, सो आई रोट 3. Then you have to add all this. So 2 + 2 4 + 2 6, 6 + 3 9, so 9 सेंटीमीटर. सो इसी तरीके से रूट नंबर जो सी है, रूट नंबर सी,
वो आपको ऐसे ही करना है, रूट नंबर सी। ओके, ये रूट नंबर सी है, ये वाला रूट नंबर सी है, ये रूट नंबर, एक मिनट सॉरी, हाँ ये रूट नंबर सी दिख रहा है आपको, ये वाला। तो बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 + 4 + 4, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 4 + 4। सो व्हेन यू ऐड ऑल दिस यू विल गेट 10। ओके, अब लास्ट रूट है रूट नंबर डी, रूट नंबर डी। ओके, रूट नंबर डी आपको, दिस इज योर रूट नंबर डी, ये वाला आपका रूट नंबर डी है। ओके, सो यू हैव 2, so I wrote 2 here, again 2, so 2, 3, 3, 4, 4. When I add all this, I will get 11. ओके, तो देखो रूट नंबर जो ए है वो कितने सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ओके, रूट नंबर बी इज देयर, that is of 9 centimeter. Root number C, that is of 10 centimeter. Root number D, that is of 11 centimeter. And okay, अब यहाँ पे लिखा हो the smallest root is, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 12, 10, 9 और 11। 9 is the smallest. Okay, so 9 is the root number B. So the smallest root is root number B. मतलब रोहन को यदि स्कूल जाना है तो उसके लिए सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा पड़ेगा पता है, ये वाला रूट नंबर बी, रूट नंबर बी। दिस वन, ये वाला जो इसका रास्ता है वो सबसे शॉर्ट होगा उसको स्कूल जाना है। तो स्कूल से घर या घर से स्कूल जाना है तो उसके लिए सबसे स्मॉलेस्ट रूट कौन सा है, रूट नंबर बी। इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड? समझ में आ गया? आंसर मी, यस और नो? Yes, sir. ओके, देखो मैं पीडीएफ आज शेयर नहीं करूंगा, जैसे ही पूरा मतलब क्लास खत्म हो जाएगा ना, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, ठीक है?